Hello friends, my name is Paranraj Bhatia. I hope you all are doing good. And in today's lecture, I will be discussing about a very important topic of environmental engineering, that is plain sedimentation. So let us discuss what is plain sedimentation and from where this word came. Actually, plain sedimentation is a part of water treatment. Plain sedimentation is a part of water treatment. So let us first understand what is water treatment. Okay, so water treatment is basically a removal process. Water treatment is basically a removal process. Now, removal of what? Removal of contaminants. So, water treatment is removal of contaminants. Removal of contaminants. अब ये रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स दो तरीके से हो सकता है. दिस रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स कैन हैपन इन टू डिफरेंट वेज. सो व्हाट आर दीज टू डिफरेंट वेज? Removal of contaminants can happen through unit operation, and other is unit processes. Unit processes. अब इसको ध्यान से समझेंगे. वाटर ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वाटर, and this removal of contaminants can happen by unit operation and unit process. What is this unit operation? If removal of contaminant is taking place with the help of physical forces, if removal of contaminants is taking place with the help of physical forces, then we call it as unit operation. So removal happens with the help of physical forces, then it is known as unit operation. And when removal of contaminants take place with the help of chemical or biological activities. Chemical or biological. If this chemical or biological forces are involved for the removal of contaminants, then it is known as unit processes. And when physical forces are there, it is known as unit operation. So I suppose these things are clear. Okay, now I am rubbing this and now we will go to plain sedimentation. अब देखिए प्लेन सेडिमेंटेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट का एक पार्ट है. अब रॉ वाटर को डायरेक्टली किसी कम्युनिटी पे प्रोवाइड नहीं कर सकते. यू हैव टू ट्रीट द वाटर एंड यू हैव टू मेक इट फॉर कंजम्पशन. Okay, so raw water can never be directly exposed or can never be directly disposed to community. So raw water first undergoes plain sedimentation. I am explaining you the water treatment scheme. Okay, so raw water first undergoes plain sedimentation, then it undergoes coagulation. Okay, after coagulation we have filtration, and after filtration the most important is disinfection. After this all process, the water will be converted into wholesome water and now it is ready for use. Raw water first undergoes plain sedimentation. So from here our topic of interest will start. Raw water, plain sedimentation, coagulation, filtration, disinfection. Okay, so plain sedimentation is basically employed for the removal of suspended particles. I am writing here, plain sedimentation is used for the removal of suspended particles. This coagulation is used for the removal of colloidal particles.
Filtration is used for the removal of organic materials या organic particles. And this filtration also removes turbidity to some extent. And the most important is disinfection. Disinfection is used to remove disease-causing microorganisms, and these disease-causing microorganisms are known as pathogens. अब ये सारे भी अपने आप में एक चैप्टर है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के, उसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. अभी हमारा मेन इंटरेस्ट है प्लेन सेडिमेंटेशन. सो प्लेन सेडिमेंटेशन अभी तो आपको ये समझ में आ गया. इट हेल्प्स टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर. ओके, देन सस्पेंडेड पार्टिकल्स तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. सो आर मेन इंटरेस्ट इज टू रिमूव द प्लेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच आर ऑफ स्मॉलर साइज, बिकॉज द लार्जर, अगर स्मॉलर अपने आप रिमूव हो जाएगा तो लार्जर तो अपने आप साथ साथ में रिमूव हो जाएंगे. सो अवर मेन इंटरेस्ट इज टू रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स विच आर ऑफ स्मॉलर साइज. ओके, okay. So now concentrate what is plane sedimentation. As I have explained that plane sedimentation is a water treatment process which is used to remove suspended particles of smaller size. अब ये बताइए कि आप अगर किसी कंटेनर या टैंक में पानी को जब डालते हैं, ओके, सो क्या वो आसानी से सस्पेंडेड पार्टिकल्स सब रिमूव हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा. इफ यू आर imposing the water in some container or tank, there might be some resistance in the form of water turbulence and also the flow velocity of water. Flow velocity of water may also offer some resistance for suspended particles to get settled down. So these two are the resistance which are being offered to the particles to get settled down. अगर हमने ये रेसिस्टेंस को ओवरकम कर लिया तो हमारे पार्टिकल्स जो है इजीली सेटल डाउन हो जाएंगे. अब पार्टिकल कैसे सेटल होंगे? द पार्टिकल्स विच आर हैविंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन दैट ऑफ वाटर, दे हैव गॉट द टेंडेंसी टू गेट सेटल डाउन बाय ओवरकमिंग दीज टू रेसिस्टेंस. देन एंड ओनली आवर प्लेन सेडिमेंटेशन विल बी completed. Okay, so plane sedimentation क्या हो गया? Plane sedimentation is a water treatment process in which a particles, that is suspended particles, will settle down under their own self weight or under the force of gravity, because those particles are having specific gravity more than that of water, and by overcoming these two resistance. So हमने क्या क्या points बोल दिए? ये दो resistance overcome होना चाहिए and specific gravity of particle. Which kind of particle? Suspended particle. Specific gravity of particle should be more than specific gravity of water. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका प्लेन सेडिमेंटेशन इजीली हो जाएगा. नाउ I told one thing, that unit operation is a treatment process, a removal process by which the particles are removed due to physical forces. Physical forces का नाम लिया. अब यहाँ हम एक बात कह रहे हैं कि specific gravity of particle is more than that of water, then particle will settle down under the action of its own self weight. That means self weight भी क्या एक तरह का physical force है. तो ये जो plane sedimentation है ये एक unit operation है. सो प्लेन सेडिमेंटेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन. हमने शुरू में ही डिस्कस किया था वाटर ट्रीटमेंट को जब डिस्कस कर रहे थे. तो अब हम बोल सकते हैं कि प्लेन सेडिमेंटेशन इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन वेयर द पार्टिकल विल सेटल डाउन अंडर द एक्शन ऑफ हिज ओन सेल्फ वेट. Particle will settle down under the action of its own self weight by overcoming the resistance of water turbulence and flow velocity. ये है complete definition of plane sedimentation. For your convenience, I am repeating the definition.
Plane sedimentation is the first unit operation in which the particle whose specific gravity is more than that of water will settle down under the action of its own self-weight by overcoming water turbulence and flow velocity. So यहाँ से हमारा जो plane sedimentation है उसकी definition खत्म हो जाती है. In environmental engineering, we will be studying about the settling, and there are 4 type of settling present. So 4 type of settling में जो plane sedimentation है, plane sedimentation follows type 1 settling. Plane sedimentation follows type 1 settling. Okay, what is this type 1 settling? This is known as discrete particle settling. Plane sedimentation follows type 1 settling, and type 1 settling is known as discrete particle settling. Discrete particles mean particle whose area, volume, specific gravity remains constant. Discrete particle means whose volume, area and also specific gravity remains constant. समझ में आ गया? टाइप 1 सेटलिंग also known as discrete particle settling. Discrete particle settling, the particle whose volume, area and specific gravity remains constant. Okay, so यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेन सेडिमेंटेशन कौन सी सेटलिंग को फॉलो करता है. सो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं दैट प्लेन सेडिमेंटेशन फॉलोज टाइप 1 सेटलिंग. ओके, नेक्स्ट, नाउ I am discussing one important concept which is entirely important for GATE exam and also for engineering services exam. That is terminal settling velocity. टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम क्लास 11th की फिजिक्स में भी पढ़े हैं. ऑल्सो वी डिस्कस दिस इन फ्लूइड मैकेनिक्स. अब टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है? कंसिडर अ पार्टिकल. ओके, आई एम कंसिडरिंग अ स्पेरिकल पार्टिकल ऑफ स्पेरिकल इन नेचर. इसका कुछ एक सेल्फ वेट होगा. लेट अस सपोज दिस इज W. Now what I am doing, I am imposing this particle to fall in the water. I am supposing that this particle is present in the water. अब जब ये पार्टिकल वाटर में प्रेजेंट है, इनिशियली जब वो गिरेगा तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा. इनिशियली क्या होगा, ये इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा. दैट मीन्स अभी वो इक्विलिब्रियम पोजिशन पे नहीं आया है. नाउ वन स्टेज विल कम व्हेन ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर बीइंग बैलेंस्ड बाय दिस सेल्फ वेट ओनली. All the external forces are being balanced by this self weight. In that case, I will say the particle has reached in the state of equilibrium. और equilibrium की state क्या होती है, आपने engineering mechanics में भी पढ़ा होगा कि when acceleration is equal to zero, that stage is known as what? Equilibrium stage. So acceleration जहाँ zero हुआ, या फिर हम ये बोलें कि this self weight is sufficient to balance all the forces. In that case equilibrium is reached. और वो resisting forces क्या होंगे, क्योंकि ये पानी के अंदर गिर रहा है, then water will offer a force of buoyancy. Let us suppose that is Fb. Also there will be a drag force. Let us suppose this is Fd. मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूँ. तो अब जब इक्विलिब्रियम हो गया तो एट इक्विलिब्रियम what I will get, Fd plus Fb, these forces are balanced entirely by self weight. Okay, this Fd is drag force. और हमने कंसिडर किया कि ये क्या है, स्पेरिकल पार्टिकल है. तो स्पेरिकल पार्टिकल के लिए ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, हाफ CD रो V S स्क्वायर. अभी हम सेटलिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना. और ये पार्टिकल क्या है, तो उसको आप ले लीजिए फोर्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल. बॉयंट फोर्स क्या होता है, दिस बॉयंट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वाटर.
सो गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू, ये हो गया। और सेल्फ वेट किसका है? पार्टिकल का है। सो यहाँ क्या हो जाएगा? गामा ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। यहां से आपका एक कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। सो ये टर्मिनल वेलोसिटी इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ। अब हम एक स्पेसिफिक ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि जो वॉल्यूम रहता है वो चेंज नहीं होता। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो डेफिनेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ओनली, दैट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। सो यहां से जब आप पूरा डिराइव करेंगे, ठीक है, मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, अगर आप बोलेंगे तो उसको मैं दोबारा से कर दूंगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिकली प्लेन सेडिमेंटेशन के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। यहाँ से जब आप पूरे चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये कंडीशन को जब आप लेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी की, जो जनरल इक्वेशन है। सो दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्टोक्स लॉ ओनली। सो दैट जनरल इक्वेशन इज Vs स्क्वायर इक्वल टू 4/3 GD into S-1 divided by CD, where this S is specific gravity and this is equal to rho P by rho W. So यहाँ से आपको एक जनरल इक्वेशन मिल गई किसकी? सेटलिंग वेलोसिटी की। क्योंकि हमने यहाँ पर CD का टर्म इंट्रोड्यूस किया है, then this equation is valid for any kind of flow regime. Flow regime may be laminar, flow regime may be ट्रांजिशनल, फ्लो रिजाइम में भी टर्बुलेंट। सो ये एक जनरल इक्वेशन है जो हर एक काइंड ऑफ फ्लो रिजाइम के लिए वैलिड है। दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। इसको ध्यान से देख लीजिए। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। आई एम नॉट रबिंग दिस इक्वेशन। यहां पर जो CD है, CD इज नोन एज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ओके, नाउ अभी हमने बताया कि ये जो इक्वेशन है ये हर काइंड ऑफ फ्लो रिजाइम के लिए वैलिड है। नाउ लेट अस सपोज द फ्लो रिजाइम इज ऑफ लेमिनार। तो लेमिनार के लिए CD का वैल्यू होता है, आपको पता होगा, 24 डिवाइडेड बाय RE। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो दिस इज वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। Laminar flow in this case RE will be less than 1. क्लियर है? अब अगर ट्रांजिशनल फ्लो रिजाइम है, ठीक है, तो उसके लिए CD का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय RE प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर RE प्लस 0.34। थोड़ा सा इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फॉर योर नॉलेज जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस ऑल्सो। This is valid for transitional flow regime. That means the value of RE is more than 1 but less than or equal to 10 to the power 4. Clear है? Third thing is, ये आपको याद रखना पड़ेगा, this is 0.4 for turbulent flow. Turbulent flow में रेनॉल्ड्स नंबर is more than 10 to the power 4. यहां से आपको ये याद रखना पड़ेगा। यूजुअली गेट एग्जाम या दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है उसमें कंडीशन ये रहती है कि CD जो है 24/RE, दैट मीन्स हम लेमिनार फ्लो कंडीशन को मेंटेन करना चाहते हैं। क्लियर है? लेकिन आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि CD अगर ट्रांजिशनल फ्लो है तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या होगा। आप इसको मेमोराइज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर साल गेट एग्जाम का थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज होता है, दूसरे एग्जाम्स का भी पैटर्न चेंज होता है। अगर 1 मार्क में सीधा क्वेश्चन आ गया तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, नाउ आई एम रबिंग दिस। सो जस्ट टेक द फर्स्ट कंडीशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अज्यूमिंग laminar flow, अब इस केस में व्हाट विल बी द सेटलिंग वेलोसिटी? इस इक्वेशन में हम
जहाँ CD है वहाँ पर पुट कर देंगे क्या, 24/RE। ठीक है, लेमिनार फ्लो हमने बोला, तो लेमिनार फ्लो में हम CD की वैल्यू को पुट कर देंगे 24/RE। व्हाट इज RE? रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर होता है, आपको पता होगा, रो इंटू VS इन दिस केस इंटू D अपॉन म्यू, रो VD अपॉन म्यू। ओके, अगर इसको और मॉडिफाई कर दें तो आपको पता है कि म्यू अपॉन रो W होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दिस म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, सो यहां से आपको रेनॉल्ड्स नंबर के लिए क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, VS इंटू D अपॉन न्यू। दिस न्यू इज काइनेमेटिक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड दिस म्यू इज डायनामिक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। न्यू का रिलेशन होता है म्यू अपॉन रो W। अब इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा VS का। देखिए पुट करके, VS इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो G अपॉन 18 S-1, यहाँ भी स्मॉल d ले लीजिए, D अपॉन RE का रिलेशन आपने अभी क्या डिराइव किया, VS इंटू D अपॉन न्यू। ठीक है, अब ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको रिलेशन क्या मिल जाएगा, VS का G अपॉन 18 इंटू S-1 D स्क्वायर, ये D यहाँ चला जाएगा, D स्क्वायर अपॉन न्यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सेटलिंग वेलोसिटी का। कंडीशन क्या है, लैमिनार फ्लो कंडीशन है, पार्टिकल जो है स्पेरिकल पार्टिकल है। स्पेरिकल पार्टिकल के लिए हमने कंडीशंस डिराइव कर ली पीछे। ये रिलेशन आपको एनी हाउ याद रखनी है, ये इसका हमने डेरिवेशन आपको बता दिया, लेकिन ये रिलेशन आपको बिल्कुल याद रखनी, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर साल लगभग इस कॉन्सेप्ट को लेके क्वेश्चन पूछा ही जाता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के वाटर ट्रीटमेंट पार्ट में। ठीक है, सो यहाँ मैं दोबारा आपको ये रिलेशन लिख के दिखा देता हूँ। Sometimes in some exams, conditions may also ask. They may ask, what are the condition for this equation of settling velocity? Which equation? Vs equal to G upon 18 S-1 D square upon nu. अब ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की, इसकी कंडीशन भी कई बार एग्जाम में पूछता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्या क्या कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन था कि पार्टिकल जो है हमारा स्पेरिकल है, particle is spherical. Next thing was flow regime was laminar. Also you should remember one more condition for which this equation is valid. D is less than or equal to 0.1 mm. ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी कंडीशन में आप ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में ये कंडीशंस भी पूछी गई हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए आपको ये टर्म नहीं दिया हुआ है और यू आर गिवन अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एज वी नो दैट म्यू एंड न्यू आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो वन मोर इक्वेशन, वन एम्पेरिकल इक्वेशन विच वॉज गिवन बाय हेजन, दैट इक्वेशन इज 418 इंटू S-1 D स्क्वायर इंटू 3t + 70 अपॉन 100। ये इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, यूजुअली इसी से पूछता है, लेकिन कई बार होता है कि आपको न्यू की वैल्यू नहीं दिया है, टेम्परेचर दे दिया है। सो ये हेजन इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज हेजन्स इक्वेशन। ओके, हेजन्स इक्वेशन, इसके लिए भी कंडीशन यही सब है। नाउ सिंस दिस इज एन एम्पेरिकल इक्वेशन, so you have to be very thorough in the units. This Vs is expressed in mm per second. ये मैं इस इक्वेशन के लिए बात कर रहा हूँ, हेजन्स इक्वेशन के लिए। ओके, D है आपका mm में एंड टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट से आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा। एम्पेरिकल इक्वेशन है तो यूनिट्स के साथ आपको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज entire environmental engineering is actually based on unit conversion only. If you are very thorough with the unit conversions, more than 50% of numerical you can solve just by
यूनिट कन्वर्जन ओनली, बट यू हैव टू बी वेरी थॉरो. सो ये कंडीशंस पता चल गई आपको. दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर दीज थ्री कंडीशन. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इफ diameter is more than 0.1 mm. अभी तो हमने ये इक्वेशन डिराइव की, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. बट व्हाट विल हैपन इफ डायमीटर इज मोर देन 0.1 mm बट लेस देन 1 mm. ऐसी कंडीशन अगर आ गई आपके पास, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाते हैं और ध्यान नहीं देंगे कि आपको डायमीटर क्या वैल्यू दिया हुआ है, और वो सिंपली वो इक्वेशन को यूज़ कर देते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी. लेकिन एग्जामिनर ये चीज़ अच्छे से जानता है कि स्टूडेंट्स आर कन्फाइंड विद वन इक्वेशन ओनली. दैट इज वाई समटाइम्स ही कैन प्ले विथ यू. he can change the value of diameter, he can increase the value of diameter more than 0.1 mm. So in that case what will you do? In that case you have one equation which is also given by Hazen. Be very careful with this equation. This is 418 s minus 1 d. पुरानी इक्वेशन में d स्क्वायर था, यहाँ पर d है, याद रखेंगे. ये है 3t plus 70 upon 100. एंटायर थिंग रिमेन सेम, mm पर सेकेंड, mm डिग्री सेंटीग्रेड, बट यहाँ पर आपको डी स्क्वायर नहीं लगाना है, यहाँ ध्यान देंगे. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज हेजन्स इक्वेशन. इसकी कंडीशन क्या है? d इज मोर देन 0.1 mm बट लेस देन 1 mm. आई एम टेलिंग यू वन मोर इक्वेशन. इन दैट केस इफ d इज मोर देन 1 mm, नाउ व्हाट यू विल डू? If d is more than 1 mm, again the Vs is given as 1.8 root over GD s minus 1. इक्वेशंस को प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है. वो अगर d की वैल्यू आपको 0.1 से ज़्यादा दे दिया, in that case you have to use this equation. Okay, so be very careful with the units. हड़बड़ी में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ध्यान से देख लीजिए. ओके, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ओके, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65. कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 गिवन डायमीटर एज 0.025 mm. Okay, and I have been given the kinematic coefficient of viscosity as 1 centi-Stokes. मैंने अभी बताया था कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली पूरा डिपेंड करती है यूनिट कन्वर्जन में. सो यू शुड नो व्हाट इज द यूनिट कन्वर्जन फॉर स्टोक्स. यहाँ पर कंडीशंस देख लीजिए. पहले डायमीटर जो है आपका लेस देन 0.1 mm है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ये वाली, g/18 s minus 1 d square upon न्यू. कंफर्टेबली यू कैन यूज दिस इक्वेशन, बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में है. जो न्यू का यूनिट होता है वो होता है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, न्यू का एक्चुअल यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. स्टोक्स भी होता है. सो 1 स्टोक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. 1 स्टोक्स is equal to 1 centimeter square per second. Now if I want to convert this centimeter square per second into meter square second, what I will do? Very easy, 10 to the power minus 2 whole square meter square per second, which will be 10 to the power minus 4 meter square per second. Clear हो गया? 1 Stokes is equals to 10 to the power minus 4 meter square per second. ये डिराइव कर दिया आपने. अभी आपको सेंटी स्टोक्स दिया है. सो 1 सेंटी स्टोक्स कितना हो जाएगा? बड़ा आसान है, 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर हो गया? सो यहां से आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 सेंटी स्टोक्स इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6
meter square per second. If you can remember, then it's very easy because it will save some time. GATE exam is entirely time oriented. 1 second is also very important for you. That is why if you can remember this equation, then it's very good. 1 centi-Stokes equal to 10 to the power minus 6 meter square per second. बस बाकी सब तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है. ठीक है, जब तक मेंशन ना करे क्वेश्चन में, आप जी की वैल्यू को 9.81 ही लेंगे. 9.81 अपॉन 18. व्हाट इज एस? 2.65. 2.65 माइनस 1 इंटू डी स्क्वायर 0.025. अब ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट अभी आपने निकाली मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, एंड दिस यूनिट इज गिवन टू यू इन mm. सो आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी बिकॉज ये भी आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती. यहां पर आपका mm है तो आप इसको चेंज करेंगे किस में? मीटर में. ठीक है, तो ये भी मीटर स्क्वायर हो गया. और न्यू की वैल्यू अभी आपने निकाल ली कितनी? 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, अब यहां से आसान हो गया. देखिए ये तो कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया. अब यहां से आपको सीधा एक्सप्रेशन निकालना है Vs का. अब ये कैलकुलेशन पार्ट तो आपको करनी पड़ेगी अच्छे से. तो ये कैलकुलेशन पार्ट जब आप करेंगे तो आपको Vs की वैल्यू मिल जाएगी, एंड वैल्यू ऑफ Vs इज इक्वल टू 5.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया था. वैल्यू ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी फॉर दीज कंडीशन इज 5.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. The main thing was this unit conversion. You got to have some idea what are the unit conditions. मतलब कैसे सारे यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड है. पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है. More than 50% of numerical, I can challenge, more than 50% of numerical you can solve just by the unit conversion. और थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता हो तो. ठीक है, तो यहाँ से आपको Vs की वैल्यू मिल गई. वेरी इजी. ठीक, लेट्स मूव फर्दर. अभी हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे थे कि सेटलिंग टेक्स प्लेस, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन बाय द एक्शन ऑफ हिज ओन सेल्फ वेट. अब ये सेटलिंग कहाँ होती है, किस प्लेस पे होती है? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. प्लेस वेयर settling of particle take place, that is known as sedimentation tank. So our next parameter is sedimentation tank. Sedimentation tank. इसको और एक चीज से बोल सकते हैं, settling tank. देखिए, माय एडवाइस इज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, अगर एक टर्म के मोर देन वन नाम होते हैं, जैसे इसका हमने एक नाम और बता दिया सेटलिंग टैंक, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए. इसका एक रीज़न मैं आपको बता दूं. रिसेंटली जो IES का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था. उसके ऑप्शन में सेडिमेंटेशन टैंक भी दिया हुआ था, सेटलिंग टैंक भी दिया हुआ था. ओके, तो अब जब दोनों का मतलब एक ही होता है, इफ सेडिमेंटेशन टैंक एंड सेटलिंग टैंक आर नथिंग बट द सेम थिंग, it becomes very easy for you to eliminate the option. Many questions are solved with the help of elimination method also. If you have some basic knowledge and if you are smart enough to judge that examiner is playing a prank on you by giving these two terms in a different options, sedimentation tank, settling tank, both are same thing. So यहाँ से दो ऑप्शन तो आपके इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं कि हाँ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. तो जो ऑप्शन होगा, जो आपका आंसर होगा, वो बाकी बचे दो ऑप्शन में से होगा. सो आपको हर एक टर्म का नाम पता होना चाहिए. ठीक है, सो एज आई वाज सेइंग दैट सेडिमेंटेशन टैंक इज अ प्लेस वेयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन बाय ओवरकमिंग टर्बुलेंस एंड फ्लो वेलोसिटी. ठीक है, अब सेटलिंग टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक बेसिकली दो टाइप के होते हैं. One is fill and draw type. Other one is continuous flow type. ठीक है, फिल एंड ड्रॉ टाइप जो है वो एब्सोल्यूट हो चुका है, आजकल यूज नहीं होता बिकॉज इट इज वेरी इजी.
आप fill करिए, allow the particle to settle down, then you throw the water. And in continuous flow type, these are used nowadays. ये दो टाइप के होते हैं. One is of rectangular, other one is circular. रेक्टेंगुलर, सर्कुलर. लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो इससे रिलेटेड होता है. ठीक है, आपको डायमेंशंस दे दिया जाएगा या आपको अगर डिज़ाइन करना होगा तो ऐसी कुछ कंडीशन दी जाएगी कि आप इसके डायमेंशंस को निकालेंगे. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय रेक्टेंगुलर टैंक ओनली. वेरी क्लियर? ओके. सो लेट अस डिस्कस अबाउट कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक विच इज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन. अगर हम इसका एक प्लान व्यू आपको दिखाते हैं, ये इसका हमने एक प्लान व्यू आपको बना के दिया. ठीक है, कि यहां से जो पानी है एंटर कर रहा है, यहां से पानी जो है वो आउट हो रहा है, और यहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन. तो क्या ये डायग्राम देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? बड़ा सिंपल सा हो गया. फ्लो इन, फ्लो आउट, पार्टिकल सेटल डाउन. तो इससे आपको समझ नहीं आएगा. दैट इज वाई टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू. ओके, जिससे आपको समझ में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द टैंक. नाउ सी, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. आई एम ड्रॉइंग द सेक्शनल व्यू. This is flow in and this is flow out. Carefully. अब देखिए पानी यहां से आ रहा है and this is known as wall. Now you may ask, sir, why this wall is provided here? The main reason of providing this wall is to overcome the turbulence. It may happen that water is entering with a very fast velocity, very fast. Now what will happen if water is entering? Then it will induce some turbulence. But if water is entering fast and it will strike this wall will allow the water to get calmed down and the flow velocity will also be maintained and turbulence is also overcome. This water will flow in this manner. Okay, ऐसे ऐसे पानी आएगा and this will now start filling up. And once it get overflowed, the water will go out. And from here the suspended particle will get settled down in this position. अब नाम इसका क्या है? कंटिन्यूस फ्लो टाइप. दैट मीन्स कि पानी कंटिन्यूसली यहां से आ रहा है, कंटिन्यूसली यहां से जा रहा है. वंस इट क्रॉसेस दिस लेवल द वाटर विल फ्लो आउट. ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज वियर. दिस पार्ट इज नोन एज वियर. यहां पर सारे पार्टिकल जो आपके सेटल हो गए. दिस पार्ट इज नोन एज स्लज जोन. ओके, पार्टिकल्स यहां से पानी आया, वॉल में टकराया, टर्बुलेंस और उसकी फ्लो वेलोसिटी कंट्रोल हुई. यहां से पार्टिकल्स गॉट सेटल डाउन, वाटर स्टार्टेड फिलिंग इन दिस टैंक एंड फ्रॉम हियर इट गॉट आउट. एंड दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट? वियर. ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है इसका. दिस वियर इज कंसर्न विद द सर्कमफरेंशियल पार्ट ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक. ओके, सो ये एक इसका सेक्शनल व्यू हमने आपको बता दिया. सो व्हाट वाज सेडिमेंटेशन टैंक? सेडिमेंटेशन टैंक इज अ प्लेस where settling of suspended particles take place by overcoming turbulence and flow velocity. Okay, so now I will be discussing the design parameters of sedimentation tank. तो design parameters जो होते हैं sedimentation tank के, वो होते हैं surface overflow rate, one is surface overflow rate, second is detention time, third one is flow through velocity. I will explain everything, don't worry. Flow through velocity, and last is wear
लोडिंग रेट, ये चार जो है ये इसके डिजाइन पैरामीटर्स हैं. यू शुड बी वेरी क्लियर विद द नेम्स बिकॉज इन आईएएस एग्जाम ऑल्सो क्वेश्चंस कम. What are the design parameters of sedimentation time? It will give you 3 option or 4 option, and in the end option it will write all of the above. You have to be familiar with all these terms, then only you can tick the correct answer. अगर आपने सिर्फ ये टिक किया ये टिक किया तो आपको नहीं मिलता. Nowadays from last year, I mean from this year only, GATE exam MSQ questions are also asked. Okay, such kind of questions are very important for MSQ point of view also. You have to tick all the option, then only you will get full marks. No partial marking is there. Okay, so these 4 are the design parameters for sedimentation tank. Now let us discuss these parameters one by one. Number 1 is surface overflow rate, SOR. इसको हम लिख सकते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट. दिस इज डिनोटेड बाय V नॉट. सरफेस ओवरफ्लो रेट इज डिनोटेड बाय V नॉट. नाउ व्हाट इज V नॉट? V नॉट इज volume of water applied in the tank in a given time. Volume of water applied in a tank in a given time per unit surface area of the tank. So with respect to surface area, एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम पानी टैंक में डाला गया. सो V बाई टी, दिस V इज नोन एज वॉल्यूम, और आप जानते हैं कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दैट मीन्स रेट ऑफ फ्लो इज नथिंग बट Q अपॉन AS. ओके, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया. अब अगर ध्यान से हम इसको देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो Q अपॉन A फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन इट इज नथिंग बट वेलोसिटी. तो इसकी जो यूनिट है वो वेलोसिटी के जैसी आपको दिख रही है, बट आप इसको समझने की कोशिश करिए. इट इज नॉट वेलोसिटी, इट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट. दैट मीन्स पर यूनिट सरफेस एरिया इन अ गिवन टाइम हाउ मच ऑफ वॉल्यूम इज अप्लाइड. ये हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया तो आपको ये वेलोसिटी जैसा लग रहा है, बट इसको आप वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं करेंगे. ठीक है, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब per hour per meter square, depending upon in which unit in the question is given. लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, पर यूनिट सरफेस एरिया में इतना फ्लो रेट का पानी है. सो दिस इज नोन एज सरफेस ओवरफ्लो रेट. नाउ दिस इज AS. AS इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया आपको प्लान से जब आप टॉप व्यू देखेंगे टैंक का, सो व्हाट सरफेस एरिया यू विल सी, इट विल बी B into L. If you observe the tank from the top view will give you the surface area. Sectional view will give you the cross sectional area. ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो आपको उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा, बट दिस विल टॉप व्यू विल गिव यू द surface area. The surface area is, if you are considering rectangular tank, it is B into L. तो अब surface overflow rate that means V naught can be written as Q divided by BL. क्लियर है? इसकी यूनिट जैसे हमने बताया लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, और एक स्टैंडर्ड रेंज अगर आप याद कर सकते तो याद कर लीजिए 500 to 700 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर इसकी एक स्टैंडर्ड रेंज होती है. ठीक है, नाउ दिस VS इज कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स. V नॉट इज कंसिडर्ड विद रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स. There is a term which is known as particle removal efficiency. Particle removal efficiency is concerned with V naught. That is why with respect to V naught, how many particles got settled? With respect to the removal, how much particle got settled? Into 100. This will give you particle removal efficiency. Particle removal efficiency is given by VS अपॉन V नॉट इंटू 100. ये जो है आपका बताता है कि पार्टिकल कितने रिमूव हो गए, ये आपका बताता है कि पार्टिकल कितने कैप्चर हो गए. दैट मीन्स आई कैन से इफ VS इज मोर देन V नॉट, इफ VS इज मोर देन और इक्वल टू V नॉट, इन दैट केस पार्टिकल विल कैप्चर
particle removal will not take place then. Vs up because both efficiency more than 100% आ जाएगी, that means particle आपका नहीं remove हुआ, particle capture हो गया. V naught is concerned with particle removal, Vs is considered with particle capture. So this was surface overflow rate. अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड पैरामीटर, second parameter was detention time dt. ठीक है, just understand what is detention time. Detention time is the average time up to which the particle remain inside the sedimentation tank. Average time for which particle remain inside the sedimentation tank. If I want to say it in another words, I can say average time taken by water to flow out from the tank, to get flow out from the tank. मतलब flow in से लेके flow out water का जितना टाइम लगेगा that is known as detention time. या फिर एक पार्टिकल एवरेज कितने टाइम तक टैंक में रहता है that is known as detention time. If I want to write the mathematical expression, detention time का क्या हो जाएगा, V upon Q. Detention time is V upon Q. And for plain sedimentation tank, dt वैल्यू 3 से 4 आवर के बीच में रहती है. ठीक है, फिर से समझ लीजिए डिटेंशन टाइम क्या होता है. एक पार्टिकल को टैंक में एवरेज कितना देर वो रह सकता है, दैट इज डिटेंशन टाइम. या फिर फ्लो इन से लेके फ्लो आउट तक, दैट मीन्स वाटर को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, वो आपका बताता है डिटेंशन टाइम. ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. और Q क्या है, Q एक्चुअली पॉपुलेशन into per capita water demand. पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड, ये आपका Q होता है. क्लियर हो गया डिटेंशन टाइम भी, वेरी गुड. नाउ लेट अस सी द थर्ड पैरामीटर. थर्ड पैरामीटर क्या था, फ्लो थ्रू वेलोसिटी. इसको हम डिनोट करते हैं VH से. इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बोलते हैं. फ्लो थ्रू वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अब जरा टर्म्स को ध्यान से देखिए. हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली बात हम कर रहे हैं. ठीक है, अगर आपका एक रेक्टेंगुलर टैंक है, जस्ट सपोज कुछ ऐसा है, और यहां से पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज योर लेंथ डायमेंशन, दिस इज योर हाइट डायमेंशन एंड दिस इज द विड्थ डायमेंशन. इफ पार्टिकल इज मूविंग इन दिस मैनर, दैट मीन्स अभी हम कौन सा एरिया कंसिडर करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया. फ्लो थ्रू सरफेस ओवरफ्लो रेट में क्या था, हम ये एरिया कंसिडर करें थे टॉप व्यू का, और अभी हम ये वाला एरिया कंसिडर करें. दैट मीन्स इन दिस केस वी आर यूजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, and in case of V naught we were using the top view, that means surface area. ठीक है, length into width. Here the area will be B into H. Area will be B into H. So फिर से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे आ जाइए. व्हाट इज VH, Q अपॉन B into H. इसको बिल्कुल भी सरफेस ओवरफ्लो रेट से कंफ्यूज मत करिए, बिकॉज दिस इज considered with the flow velocity, horizontal velocity, and that was considered with the depth dimension. That means ऐसे in this direction the velocity was flowing, because I was pouring the water in this direction and the top view, the plan area was being considered in that case, and in this case the cross section area is considered. तो दोनों में बहुत डिफरेंस है. अभी हमने आपसे डिस्कस किया था डिटेंशन टाइम. डिटेंशन टाइम क्या था कि वाटर को इन से लेके आउट जाने में कितना टाइम लगता है. सो अब यहां भी हम यही बात कर रहे हैं, यहां से एंटर हो रहा है और यहां पर जाके स्ट्राइक कर रहा है. तो अब डिटेंशन टाइम और ये, इसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिटेंशन टाइम इज इक्वल्स टू, अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, तो लेंथ अपॉन, अब VS वेलोसिटी कौन सी लेंगे हम, VH लेंगे. ठीक है, क्योंकि डिटेंशन टाइम भी इसी डायरेक्शन की बात कर रहा था, हॉरिजॉन्टल की. फ्लो थ्रू वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन की बात कर रहा है. तो अब डिटेंशन टाइम को आप लिख सकते हैं
L अपॉन VH, और ये आपका VH का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पैरामीटर वाज वियर लोडिंग रेट, WLR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में WLR बोल देगा तो आप कंफ्यूज मत होना कि WLR क्या है। WLR इज वियर लोडिंग रेट। रिमेंबर इट्स फॉर्मूला, इट इज Q अपॉन लेंथ ऑफ वियर। This length is nothing but circumferential length. मान लीजिए आपको अगर सर्कुलर टैंक दे दिया तो उसमें लेंथ क्या हो जाएगी, 2πr। सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है। ओके, वेरी गुड। सो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम देख लेते हैं इसमें, किस टाइप के प्रॉब्लम गेट में आते हैं। देन आफ्टर दिस प्रॉब्लम आई विल वाइंड अप दिस चैप्टर, एंड यहाँ से आपका प्लेन सेडिमेंटेशन का एंटायर कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो जाता है। लेट अस सपोज वन क्वेश्चन, a sedimentation tank of length 15 meters, width 6 meters and depth 3 meter। ये आपको सेडिमेंटेशन टैंक के डायमेंशन दे दे। दैट मीन्स ये आपको डिजाइन करने नहीं बोल रहा है। सेडिमेंटेशन टैंक आपको डिजाइन करने नहीं बोल रहा है, ये आपको एनालिसिस करने बोल रहा है कि हमने ये टैंक आपको बना के दे दिया, अब आप इसका हमको एनालिसिस करके दिखाइए, टर्म्स निकाल के दिखाइए। फ्लो रेट आपको दे दिया है 2 mld, ठीक है। नंबर 1, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट सरफेस ओवरफ्लो रेट। नंबर 2, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट डिटेंशन टाइम। ठीक है, ये दोनों पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए थे, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ कंडीशन बोली है कि आपको ये निकालना है लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर में, और डिटेंशन टाइम आपको निकालना है आवर में। अब यहां से आपका यूनिट्स का काम चालू होता है। ठीक है, सबसे पहले आप सरफेस ओवरफ्लो रेट पे आ जाइए। ये क्या होता था, Q अपॉन B इंटू एल। बी और एल में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको देखिए लीटर्स में चाहिए, तो सबसे पहले आप मिलियन लीटर्स को लीटर में चेंज कर दीजिए। लीजिए भाई, कर दिया। मिलियन लीटर्स पर डे, बट यू नीड आवर, तो 1 डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ये आपका Q आ गया लीटर्स पर आवर में आ गया। यहां से आपका ये काम खत्म हो गया, इतना काम तो हो गया, बचा क्या, ये मीटर स्क्वायर। अब B इंटू एल, आपका L और B दोनों मीटर में दिया है, तो इसको आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 इंटू 6, यहाँ से आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 925.9 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम में इसको कई बार बोलता है कि आप राउंड ऑफ करके लिखिए, तो आप इसको लिखेंगे 926 लीटर पर आवर। ठीक है भाई, ओके। नाउ डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन क्यू। क्लियर है, ये आपको निकालना है आवर्स में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH 15 इंटू 6 इंटू 3। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका Q जो है 2 इंटू 10⁻6, ये तो लीटर्स पर डे हो गया। ठीक है, अब लीटर्स को आपको अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका 10⁻³ आ गया, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। ये आपका कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब पर डे में, बट यू नीड इन आवर, तो यहाँ पर आप इसको कर दीजिए 24। बहुत ध्यान से यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन यूनिट ओनली, आपको दिया किस में, निकालना किस में। ठीक है, यहां से आपका जो डिटेंशन टाइम है उसकी वैल्यू आवर्स में आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.24 आवर। ठीक है, मेरा मेन मकसद आंसर निकालना नहीं था, मेरा मेन मकसद था कि आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, और जो पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं उसका कितना अच्छा एप्लीकेशन है। और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है और 2 मार्क्स आपके नाम। ठीक है, तो आई सपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज वेरी मच क्लियर। फ्रॉम हियर आई वुड लाइक टू से थैंक यू, and in the next upcoming lecture I will discuss some more water treatment parameters. Okay, so I wish you all a very happy learning, all the best for your exams and all the best for future. Thank you.